हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 5 ग्रुप ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी की ओर से वो आपके सामने है। फर्स्ट है आपका डिराइव द इक्वेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए मेटेरियल पार्टिकल एंड गिव वन एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ दी थ्योरी। सेकंड आपका एस्टेब्लिश द डी ब्रोगली रिलेशन लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम बी where the symbol have usual meaning. थर्ड है आपका reduce an expression for the de Broglie wavelength for a meter per wave given at least one experiment in support of the metal। शुरू करते हैं हम लोग डी ब्रोगली थ्योरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। शुरू करते हैं हम लोग डी ब्रोगली's theory of matter, de Broglie hypothesis। De Broglie suggested from theoretical consideration that matter also had a dual character. According to him, electrons as well as protons, which ordinarily behave like particles, under certain conditions behave like train of waves. The wavelength of these waves is given by lambda equal to h by p equal to h by mb, where h is Planck's constant। तो डी ब्रोगली ने थियोरेटिकल कंसिडरेशन दिया कि जो मेटल होता है उनको भी डुअल करेक्टर होता है, मतलब पार्टिकल एंड लाइक वेव दोनों प्रकार से वो बिहेव करता है। तो उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन जितने भी हैं विच ऑर्डिनरी बिहेव लाइक पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करते हैं मुख्यतः, वो भी अंडर सर्टन कंडीशन जो है वो भी वेव की तरह व्यवहार करते हैं, बिहेव लाइक ट्रेन ऑफ वेव्स। द वेव लेंथ ऑफ दीज वेव्स इज गिवन बाय लेम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बाय पी, और पी इक्वल टू एम बी, एच बाय एम बी, वेयर एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वी नो। According to quantum theory, radiation of frequency mu consists of quanta or photons, each of energy equal to h mu, equation 2। Therefore, the equivalent mass of the photon m equal to क्या हो जाएगा e by c square, m equal to क्या हो जाएगा e by c square from equation 1, और e equal to h mu by c square from equation 2, and equivalent momentum p equal to mc e by c square into c h mu by c, and p equal to h by lambda। सिंस लेमडा इक्वल टू क्या है c by म्यू, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू लेमडा, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू h by p। ऑलराइट, सिमिलरली द वेवलेंथ ऑफ द मैटर इज गिवन बाय h by p। if m is the mass of material particle and v is its velocity, then p equal to what mv। The wavelength of the waves associated with material particle is given by lambda equal to h by mb, equation 3। This is known as de Broglie wave equation, and lambda is called de Broglie wavelength. The associated wave is treated as de Broglie wave. Alright. The expression for the wavelength of the matter waves can also be derived using the general equation of wave system and the principle of relativity। The value of psi at any instant t at a point xyz is given by mu equal to psi 0 sin omega 0 t0। psi इक्वल टू वाट हो जाएगा psi 0 sin ओमेगा 0 की जगह 2 पाई म्यू 0 t0, इक्वेशन 4। इसको नोट भी बोल सकते हैं आप लोग, नोट ही बोलिए। वेयर म्यू नोट is the frequency of the particle is observed by the observer at rest relative to the particle, and psi naught the amplitude of the wave at the point xyz। Let the particle be moving with velocity v along positive x-axis। de Broglie used to inverse Lorentz transformation। तो टी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टी नोट इक्वल टू क्या होता था टी प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इक्वेशन 5। Putting the value of t naught from equation 5 in equation 4, we get psi equal to psi naught sin 2 pi mu naught t प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का पावर हाफ, रूट का हाफ हो गया, इक्वेशन ये क्या हो गया 6। अब द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव मोशन होता क्या है, वेव मोशन इज गिवन बाय psi इक्वल टू psi 0 psi इक्वल टू psi नॉट sin 2 pi by t प्लस x by u, equation 7, where t is the periodic time and u the phase velocity of the wave along x-axis। Comparing equation 6 and 7, तो इक्वेशन 6 और 7 को कंपेयर करते हो तो हम लोग क्या पाते हैं u की जगह क्या है इधर
सी स्क्वायर बाय भी है, एंड 1/t की जगह क्या है म्यू, जो म्यू म्यू क्या है म्यू नोट बाय 1 माइनस भी स्क्वायर पावर बाय सी स्क्वायर पावर हाफ। इक्वेशन 8, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन ई इक्वल टू क्या होता है एम नोट सी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू नोट, तो म्यू नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा एम नोट सी स्क्वायर बाय एच। ऑलराइट, सब्स्टिट्यूटिंग दिस एंड सब्स्टिट्यूट दिस, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 8 में। इक्वेशन 8 कहाँ पर है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है एम नोट सी स्क्वायर बाय एच 1 माइनस भी स्क्वायर पावर हाफ इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाय एच, वेयर एम क्या है एम इक्वल टू एम नोट बाय 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पावर हाफ। ये क्या है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े होंगे आप लोग, इसी प्रकार का है यहाँ पर एम के लिए। द वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज गिवन बाय लेमडा इक्वल टू क्या वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी यू बाय म्यू, तो लेमडा इक्वल टू यू का वैल्यू क्या है सी स्क्वायर बाय वी और म्यू का वैल्यू एम सी स्क्वायर बाय एच, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, बचता क्या है एच बाय एम बी, और लेमडा इक्वल टू क्या हो गया एच बाय एम बी। दस द पार्टिकल इन मोशन इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट वेलोसिटीज, one of which refers to the mechanical motion of the particle represents by small b, and other refers to the propagation of the associated wave represented by u. The relation connecting these two velocities is u equal to c square by v। हमको प्रूफ करना था lambda इक्वल टू एच बाय एम बी, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर मैटर वेव्स, जो दिखाता है कि पार्टिकल जो है वो भी वेव की तरह क्या करता है बिहेव करता है। ये आपका एक दो वैज्ञानिक थे डेविसन एंड जर्मर्स, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। द वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज कन्फर्म्ड बाय डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। थ्योरी क्या करता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन starting from rest and accelerated by a potential difference v is given by half m0 small v squared equal to e into capital V, where m0 e and v are the rest mass, charge and velocity of the electron respectively। तो v इक्वल टू क्या है रूट अंडर 2ev बाय m नॉट, इक्वेशन 1 2ev by m नॉट। The de Broglie wavelength associated with the electron moving non-relativistically is given by lambda equal to h by m0 m नॉट v। तो h by v का वैल्यू यहाँ पड़ गया, तो रूट अंडर 2 m नॉट e v। इफ v इज इन वोल्ट, अगर v वोल्ट में हुआ तो देन लेमडा इक्वल टू वाट हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ये h का वैल्यू h क्या है प्लांक कांस्टेंट अंडर रूट v बाय 300 इंटू 2 इंटू 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 9.21 इंटू 10 पावर माइनस 28, जो आपका है ई और भी एम नोट का वैल्यू वो वहाँ पर रिपोर्ट कर दिए। तो लेमडा इक्वल टू वाट 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर बाय रूट अंडर भी 12.27 बाय अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम, इक्वेशन 2 में ला दिए। अब एक्सपेरिमेंट है क्या ये एक्सपेरिमेंट, the experiment arrangement is shown in figure। The electrons are produced by heating a tungsten filament F and are accelerated through a non-potential difference V। All right, the electrons are collimated by passing through narrow holes। The fine beam of electrons falls normally on the surface of a nickel crystal and the electrons are reflected, and the intensity of reflected electrons is measured at various angles with the help of ionization chamber 1। तो यहाँ आपका क्या हुआ नेरो होल्स के होके गुजरता है आपका। द फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ निकल crystal and the electrons are reflected, and the intensity of reflected electrons is measured at various angles with the help of ionization chamber। तो ये है it was observed that the intensity of reflected electron beam as a function of angle of reflection showed maxima and minima। The curve represents a polar indicating the intensity of reflected electrons at various angles
it is found that the intensity is maximum at 50 degree for critical energy 54 electron volt. The distance from the origin to the curve in a given direction is the relative measure of the scattered intensity in the direction. तो आपका दिया गया 50 डिग्री एंगल के लिए, और वो क्या इलेक्ट्रॉन कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 12.27 बाय 200 बी एंगस्ट्रॉम. तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 12.27 बाय रूट 120 54 क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस भी है 1.66 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. द वेवलेंथ कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द diffraction experiment as the lattice constant for a single crystal of nickel is equal to 2.15 angstrom. The condition for constructive interference is given by d sin theta equal to क्या होता है, लेमडा. तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d sin theta. d का वैल्यू क्या है 2.15, ऑलराइट. और थीटा कितना है 50 डिग्री था, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा 1.65 एंगस्ट्रॉम, which is an excellent agreement with the experimental result. ऑलराइट, तो ये आपका क्या था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. ये पूरा आप कर लीजिएगा. डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट दिया था क्या, कि वेव लाइक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हुआ, एक पार्टिकल है लेकिन वो भी वेव की तरह क्या होता है, बिहेव करता है. और ये हाइपोथेसिस किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था, इसलिए इनको क्या करते हैं, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस करते हैं. तो ये रहा आपका डी ब्रोगलीज थ्योरी ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 का भी वीडियो डालेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा सी यू, साइनिंग आउट.